as you all know, we are here for a monthly session of our seminar, and today we have a routine seminar whose topic is heart problems. As you all know, this heart problems is a burning topic for today's world. I think everyone must be aware of these problems. The heart-related problems is how much common today in our day-to-day life. So, to initiate this heart-related problems, to initiate its awareness towards ourselves, in our society, we have already celebrated this day as a World Heart Day on last month of 29th of September 2023. This Heart Day is being celebrated every year on 29th of September, right? So, to know, to discuss, to have more ideas about these related problems, today we have this session regarding the most important topics of today, that is the heart problems, means the heart related diseases or cardiovascular diseases which we are knowing to discuss or which we are going to discuss today. So with these few words, I would like to declare the session of to be inaugurated. So I will request our Today we are having a routine seminar on the cardiac disease. Myself, Ekta Kumari. I would like to share some knowledge on the ischemic heart disease. The name itself represents the heart disease caused by the ischemia. Ischemia, which means the loss of tissue, death of a cells or necrosis of a cell or tissues due to loss of blood supply. किसी भी टिश्यूज और सेल्स का डेथ हो जाना, जो कि लॉस क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो, उसे इस्कीमिया कहते हैं. और इसके अगर इटियोलॉजी और कॉजेज देखते हैं तो कॉजेज में द मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हार्डनिंग और ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाता है बिल्डअप ऑफ लिपिड्स एंड फैट के कारण. और स्मोकिंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में और आ जाएगा आपको फिजिकल इनएक्टिविटी और डाइट इरेगुलर होने के कारण होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स में जब हम देखें तो हार्ट पेन होगा, सिंकोप हो जाएगा, पल्मोनरी पैल्पिटेशंस होंगे. फिर अगर हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं तो डायग्नोसिस में इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, कार्डियक सीटी स्कैन कर सकते हैं, ईसीजी भी कर सकते हैं. ट्रीटमेंट में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है. फिर बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग. फिर मैनेजमेंट में हम लोग स्मोकिंग करने के लिए मना कर सकते हैं उसे. फिर फिजिकल वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. डाइट को डाइट अच्छे से लेने के लिए उसे मोटिवेट कर सकते हैं. थैंक यू. Now I would like to request Shruti, batch 2022. Good afternoon, everyone. Respected teachers, seniors, and my dear juniors. I am Shruti from batch 2021. From the very beginning, I would like to thank you all for giving me the opportunity to speak some things about cardiac problems in front of you. Today's topic is cardiac problems. Cardiac problems, also known as silent killers, are the leading cause of disease burden and mortality worldwide. It is a global epidemic accounting for 30% of deaths worldwide. According to WHO, India accounts for 1/5 of these deaths worldwide. It is 272 per 1 lakh population in India, which is much higher than that of global rate. अगर इंडिया की बात करें तो करंट सिनेरियो के अनुसार एनुअल नंबर ऑफ डेथ इंडिया में कार्डियक डिजीज के कारण 2.26 मिलियन से बढ़कर 4.77 मिलियन अभी तक हो चुका है. बट व्हाट इज इट? यह है क्या? कार्डियक प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स a range of conditions that affect our heart or blood vessels. There are many different types and it can affect anyone at any age. One of the major cause and one of them is angina pectoris. And now I am going to talk about angina pectoris. Angina pectoris. The word itself says angina means pain, pectoris means pectoral region of chest. It's not a disease but itself a sign of
particular disease, defined as substernal chest pain or discomfort with or without exertion. Exertion means with or without effort. A symptom of acute chest pain towards left arm, shoulder appears when no enough oxygen is reaching in the heart muscles. It is more common among the middle-aged and elderly. It is commonly in older above the age of 60. Even at the middle age, diabetes, smoking, physical activity, if all the risk factors is present along with the development of atherosclerosis, there may be the chance of development of angina. In women also affected only after menopause. If we see ratio, it is approx 1:1 after age of 50. अगर 50 इयर्स के बाद की बात करें तो वुमेन्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर रेशियो देखा जाए तो मैन के प्रोपोर्शन 1:1 होता है. वुमेन में 1:1 इसीलिए होता है क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है. और एस्ट्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि वो ब्लड कैपिलरी पे बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो ब्लड कैपिलरी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है जिससे ब्लड कैपिलरी नैरो हो जाता है जिससे कि बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं. द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक. अब इसके टाइप्स की बात करें तो दे आर कॉमनली द 4 टाइप्स. स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना में जो होता है वो मोस्ट कॉमन वेरिएंट ऑफ एंजाइना है. चेस्ट पेन अकर्स एट फिजिकल एक्टिविटी रिलीज्ड बाय रेस्ट एंड मेडिकेशन usually lasts for 5 minutes. Second type is unstable angina. Pain is more severe and occurs in resting condition and it can convert into myocardial infarction. Third stage is variant angina. Chest pain usually occurs at night and silent angina. It is painless. Now we talk about etiology. What is the reason behind the angina pectoris? The first reason behind the angina pectoris is age related problem. Second one is obesity. Third one is hypertension. Fourth is atherosclerosis. Fifth one is family history, diabetes and renal failure. There are many risk factors which triggers this disease. These risk factors are smoking and alcohol intake, high fatty diet, excessive emotional stress. After report says after 1 year of diagnosis of stable angina, 10% to 20% of people develop acute myocardial infarction or unstable angina. The reason is early diagnosis as well as proper treatment required to prevent the development of early stage angina towards unstable. Now we talk about signs and symptoms. Signs and symptoms include chest pain. Chest pain बहुत तरह का chest pain हो सकता है. Pressing, squeezing, crushing pain. Referred pain. Referred pain में कहें तो pain along with pain in another regions of our body along with chest pain. Third, heartburn. Fourth, weakness and fatigue. 5, pallor skin. 6, nausea and vomiting and shortness of breath. Now we talk about diagnosis, history collection, family history, physical examination, lipid profile, ECG, angiography, CT scan. मेडिकल मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई, बिकॉज ऑक्सीजन अगर लेस होगा तो चेस्ट पेन अकर्स होगा. कोरोनरी वैसोडाइलेटर, एंटीकोगुलेंट सप्लाई किया जाता है हेपेरिन और एस्पिरिन. फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी. दैट्स इट अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस. बट लास्टली आई वांट टू से रिमेंबर एवरी 12 मिनट्स cardiovascular disease claims a life. It's not just a number, it's a life. It could be a family member, a friend, it could be you. So take care of your heart and join the fight against the world's #1 killer. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to say something about this most disastrous condition. Actually, इंस्टीट्यूशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. यहाँ होता है एक पढ़ाना, समझाना, स्टूडेंट के कैलिबर को डेवलप कराना. तो इस मामले में हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने जो व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस करे, जो कि
वो हमारे पहले के जो लोग जो वक्ता गए ये लोग किए, लेकिन एक बात है कि किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और गहराई से समझने के लिए एक विशेषता है कि यदि उसको अपनी मातृभाषा में उसको उसका वर्णन किया जाए तो समझ कहीं ज्यादा बेहतर होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शायद तुम लोग तो नाम भी सुन सकते होंगे, हम लोग के टाइम के तो थे भी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने मातृभाषा का महत्व लिखा था, तो उसमें लिखा था कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ, बेसाख्ता निकला हुआ जो शब्द होता है वो अपनी मातृभाषा में होता है। कोई आदमी कितना हो बाहरी रंग में रंगा हुआ हो, कोई इंडियन अंग्रेज बन गया हो पूरा का पूरा, तुम देखो, जानना चाहो कि ये इंडियन है कि नहीं, एक बैग पीछे से एक मुकम उसके पीछे मार दो, उसकी आवाज जो निकलेगी वो गॉड नहीं निकलेगा, हे भगवान, अरे बाप रे, यही सब निकलेगा। ये साबित करता है कि मातृभाषा जो है रचा बसा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत ढंग से बात जो समझ में आवे वो अपनी मातृभाषा में ही मैं तुम लोगों को बताऊं, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे पहले तो एक चीज थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दें कि हमारे पहले के जो श्रोता थे, वो सॉरी वक्ता जो थे, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लाइन पे उन्होंने डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। इसमें एक चीज थोड़ा सा, जब कहीं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात जब कहीं कही जाती है तो उस बात की छाप जो है अमिट हो जाती है। इसलिए ऐसे में कोई बात कंफ्यूजन अगर हो तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में भी एकता ने एक बात कही, वो बहुत ढंग से वो मैंने इस्कीमिक कंडीशन के बारे में कही, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करना वो अब नहीं कर पाई। इस्कीमिया जो शब्द है, इट इज ओनली, इट रिप्रेजेंट्स द लैक ऑफ ब्लड इन एनी पार्टिकुलर पार्ट। Death of cell is the result of ischemia, that is called infarction. But only ischemia is just lack of blood in a particular part. So it must be counted. इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कहा गया कि फीमेल में ही ये जो कही बहुत ही प्रधानता दे करके, ये बात भी सही है कि मेनोपॉज के टाइम में जब उसके जो नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स जो है उनका सिक्रेशन जब रुक जाता है तो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनमें कुछ फर्क पड़ते हैं, सर्टेनली, बट इट इज नॉट होल एंड सोल। बट ये जो चीज जो इसके लिए हैं एंजाइना के लिए, और पहले की कंडीशन, जिस कंडीशन में एथेरोमा डेवलप करेगा, वो सारे कंडीशन जो है वो इम्प्लॉयड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाँ, ये बात अलग है कि हर डिजीज के कुछ मैक्सिमम कंडीशन जो होते हैं वो मेल के ऊपर ज़्यादा इम्पोज होते हैं, फीमेल के ऊपर अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसके पीछे जो मुख्य वजह ये होती है कि हार्ट के साथ साइकिक कंडीशन का बहुत क्लोज रिलेशन है। एक तो है रेसिप्रोकल रिलेशन हार्ट और लंग्स का है, हार्ट चलेगा तो लंग्स चलेगा, लंग्स चलेगा तो हार्ट चलेगा। yes, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन होगा। yes, लेकिन इसी तरह से साइकिक कंडीशन, मानसिक अवस्था जो है, उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट के फंक्शनल कैरेक्टर पे होता है। सडन कोई बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज सुनने वाला आदमी बेहोश हो जाता है, देखा जाता है कि उसका हार्ट का सप्लाई बंद हो गया। पीछे वजह क्या हो गई? मानसिक। तो मानसिक स्तर पे जो बातें होती हैं उनका सीधा सीधा इसके ऊपर असर होता है। एक चीज इसमें ये जो बताई वो साइलेंट एंजाइना
एक्चुअली साइलेंट एंजाइना का नाम सुनकर के कुछ लोग जो इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि कुछ और क्लियर हुआ होता तो अच्छा होता कि व्हाट डू यू मीन बाय साइलेंट एंजाइना। जब एंजाइना है तो फिर साइलेंट क्या, वो माने वो नाराज रूठ भी जाओ, हंसो भी और गाल भी फुलाओ, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ है एक विशेष बात है, इस चीज को तुम लोगों में से कोई जरूर होगे जो फाइनल ईयर में हमारे क्लास से गुजरे होंगे और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हम डिस्क्राइब कर रहे थे। उस समय हमने एक डायबिटीज मेलिटस की एक महानता बताई थी कि डायबिटीज मेलिटस बहुत ही भयंकर रोग है, लेकिन एक मामले में इसकी महानता है, और वो महानता क्या है कि अगर उसके अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो तो डायबिटीज के पेशेंट को पेन नहीं होता है। यस सर। ये स्पष्ट चीज है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को जो पेन नहीं होता है, उस तरह के पेशेंट में जब इस्कीमिक अटैक आते हैं उसी को साइलेंट एंजाइना कहते हैं। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात और थी, जैसे इसमें एकता ने बीटा ब्लॉकर की बात कही, ये ठीक है, ये कन्वेंशनल वो जो थेरेपी एक प्रोसीड्यूर है उसके तहत बीटा ब्लॉकर के बारे में हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच कैन ब्लॉक द सर्कुलेशन एंड इन रिगार्ड टू पार्टिकुलर सब्सटेंस, बट हाउ फॉर इट इज कंसर्न विथ वो गड़बड़ा जाता है, कभी कभी घूम जाता है उसको, तो हम समझते हैं कि उसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है। ये जहां तक ये संबंधित ये बात है कि जैसे उनके यहाँ इस मामले में एंटी एरिथमिक ड्रग, हमारी किताब जिसके पास भी होगी तो उसमें एक जगह एक ग्रुप मैंने डिस्क्राइब किया है मेडिसिन का, एंटी एरिथमिक ड्रग का 4 ग्रुप में वो हैं, ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4, और उसके अंदर में जो है वो कुछ दवाएं हैं जैसे सोटालोल, ये सब जितने भी हैं सेकंड ग्रुप के, इन सबों का बहुत ही उन लोगों के यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट इस्तेमाल होता है एंटी एरिथमिया की अवस्था में, हाइपरटेंशन की अवस्था में, तो ठीक है वो करते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं कि इसका अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। जैसे अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है और एक ये बहुत बड़ा कारण ये जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज के लिए है, जिसके लिए हिपेरिन की चर्चा भी बच्ची ने की, एकदम सही है। हिपेरिन बॉडी का अंदर का तो नेचुरल सब्सटेंस है फॉर द पर्पस टू कम्बेट विद द कंडीशन ऑफ द इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग। लेकिन जब यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत, थेराप्यूटिक एजेंट की जरूरत जब हो, तो किसी भी दवा से ज्यादा बेहतर, हमने बताया था उस वक्त जबकि वो कार्डियोवास्कुलर ये क्या नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की स्थिति की संभावना दिख रही हो, कुछ फीचर दिख रहे हो, तो ये कहा जाता है कि डोंट वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, मिनिमम यू हैव टू स्टार्ट द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी टू सेव योर पेशेंट, उसके बाद करते रहो। और ये चीज जो है तुम्हारे क्या कालीम्यूर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वेल इफेक्टिव मेडिसिन, कालीम्यूर, लैकेसिस और एमोनकार्ब, ये 3 दवाएं तुम्हारे यहाँ हैं जो अनफेलेबल और जिसके ऊपर पूरे विश्वास के साथ। तो कालीम्यूर का तो ये है कि जहां अगर थोड़ा भी तुमको संभावना दिख जाए हार्ट के दिक्कत के मामले में, तो कालीम्यूर तुम उस वक्त से शुरू कर दो उसको, तो कम से कम तुम्हारा 75% पेशेंट तो बच ही जाएगा, क्यों तो थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी जो है जारी हो जाएगी। या फिर इसी तरह एस्प्रिन देने की जो बात है, जनरली एस्प्रिन का बहुत ही शानदार अल्टरनेटिव तुम्हारे यहाँ कैफीन है। कॉफिया क्रूडा एक अलग मेडिसिन है, लेकिन कॉफिया का जो एक्टिव प्रिंसिपल अल्कलॉइड है दैट इज कैफीन, और कैफीन जो है उसकी खासियत है कि हमने
हार्ट डिजीज की चर्चा करते वक्त अक्सर ये बात, इसकी चर्चा मैंने की थी कि जब तुम्हारा कार्डियक पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उपजना चाहिए कि तुम्हारे पेशाब की स्थिति क्या है। अगर पेशेंट का पेशाब नॉर्मल 1.5 से 2.5 लीटर के अंदर में, जो कि एक सामान्य जो 24 आवर में निकलने का जो वॉल्यूम है, अगर इसके अंदर है, तब तुम आश्वस्त होकर के पेशेंट को देखो। और जहां पेशेंट कहता है कि पेशाब तो कम हो रहा है, तो तुमको घबराहट होनी चाहिए, रोगी को नहीं। यानी हार्ट के पेशेंट को अगर पेशाब कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रोग वर्ष हो रहा है। और अगर पेशाब उसका फ्रीली हो रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट जो है वो रिकवरी कन्वर्सेंस की ओर जा रहा है। ये बहुत बड़ा ये है। ये तुम्हारा कैफीन जो है, कैफीन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैफीन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और साथ ही ये जो है डाययूरेटिक प्रॉपर्टी को इन्हांस कराता है। ये पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है। पेशाब की मात्रा बढ़ गया तो समझ लो कि हमारे पेशेंट को अब कुछ ना होगा। ये काम करने के लिए तुम्हारे पास जो है वो एस्पिरिन तो कहीं कहीं पे हैजार्ड पैदा कर देता है कि पेशेंट के साथ बहुत ही क्रूशियल कंडीशन आ जाती है। तुम्हारा ये कैफीन जो है किसी भी अवस्था में हैजार्ड पैदा नहीं करेगा, और इसके ऊपर तुम पूरे विश्वास के साथ तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब जरूरत पड़े। और उससे अधिक इसके बारे में जानना होगा तो तुम लोग में करीब करीब बहुत सारे सबों के पास करीब करीब जो नया है उनके पास नहीं, बाकी लोगों के पास तो मेरी किताब है ही, उसके अंदर भी इसकी चर्चा है, उसको देख लो। तो खैर ये तो हमने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारे पहले के वक्ता जो हैं उनकी बात पूरी तुम लोगों के समझ में आ जाए। कारण कि एक इसी वक्ता के ग्रुप में हम भी हैं, तो हमारा भी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारे सारे वक्ताओं जो गुजरे उन सबों का जो यहाँ परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो सही हो। अब यहाँ एक्चुअली हम तो इस ओर मुड़ गए इनके क्लैरिफिकेशन में। वास्तव में हम अपने को आज हम यहाँ अपने आप को कम्युनिटी मेडिसिन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने को रिप्रोड्यूस करना चाह रहे थे, और ऑन द लाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन अंडर कम्युनिटी मेडिसिन इन दिस रिगार्ड, कम्युनिटी मेडिसिन में जिस ढंग से इस कंडीशन की चर्चा या व्याख्या की जाती है, हम उस एस्पेक्ट को हम खोलना चाहते थे। और इस संदर्भ में ये देखते हैं कि आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले हम लोग जिस वक्त वो ग्रेजुएशन के लेवल में थे, और भी 50-55-60 वर्ष पहले, तो उस वक्त अगर जो कभी ये बात सुनाई पड़ती थी कि अमुक आदमी को हार्ट डिजीज हुआ है, तो बड़े आश्चर्य से सारे लोग उसको सुनते और देखते थे। अगर कहा कि हार्ट डिजीज हुआ है तो लोग उसमें पूछते कि बड़े आदमी होंगे, अमीर आदमी होंगे, बड़े ऑफिसर होंगे। ये बात सही थी, यानी उस समय ये सामान्य धारणा थी कि कोई उसी तरह का आदमी जो होगा उसी को ये हार्ट की डिजीज जो है ये हो सकती है। यानी बहुत कम मुख्तसर हो सकती है, साल में एक आध लोग अगल बगल में सुन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे आकर के ये जो अभी देख रहे हैं कि आज के टाइम में ये हार्ट डिजीज का उसकी बेइज्जती हो गई है। हार्ट डिजीज जितना भयंकर डिजीज है, इतना ऊंचे स्तर का डिजीज है, उसकी बेइज्जती है कि जैसे
वो इन्फ्लुएंजा के लिए, डेंगू के लिए, कोरोना के लिए वो वार्ड सेट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। हर डिजीज के लिए वार्ड सेट किया जा रहा है। इतनी संख्या में हर डिजीज होता है, बेचती है कि नहीं हर डिजीज। ये चीज देखा गया कि ऐसा हो क्यों गया। ये जो है कम्युनिटी मेडिसिन का ये सवाल उसके अंदर के सोचने वाली बात है कि ऑन द कम्युनिटी क्या गड़बड़ी हुई कि हार्ट डिजीज इस तरह की बात आ गई। अब ऐसा जब हुआ और उसमें भी जब कुछ साल जो बीते, मैंने इस मामले में तो 1978 से ही लोग एक्टिव हैं, लेकिन इधर 2018, 2020 इन सब स्थित जगह पे आकर के तो देखा कि इधर तो 2020 में तो 20 मिलियन डेथ हैज टेकन प्लेस। तो ये सब देख करके पूरे वर्ल्ड के स्तर पे तकरीबन 100 देश के 200 इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिक फेडरेशन, ये लोग बना करके और इसके तहत जो है हार्ट डिजीज के अगेंस्ट वो अवेयरनेस पैदा करने की लोग कोशिश करने लगे। परिणाम हुआ कि ये जो फेडरेशन जो है, इस फेडरेशन के वो 1997 में इसके प्रेसिडेंट जो थे एंटोनी वायस डी लूना। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको हमारे जो स्टूडेंट सीनियर हैं वो इसको याद कर लें। और हम अक्सर कहते हैं कि जब कभी किसी इस तरह के सेमिनार में बैठिए तो वो सत्यनारायण कथा के रूप में मत बैठ जाइए कि पंडित जी क्या कहेंगे, वही कन्या कलावती कन्या लीलावती ही तो सुनावेंगे। तो लोग चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं और वो भी भूल जाते हैं कि साधु नाम बनिया कौन था, है ना। ये पेपर रखना चाहिए इस तरह में कि कहीं पे हमको लिखने के लायक कोई बात मिल जाए। तो एंटोनी वायस डी लूना ये प्रेसिडेंट वो 1997 से लेकर 99 तक प्रेसिडेंट रहे ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के। और उन्होंने ही WHO के साथ कोलैबोरेशन करके वो जो है अकेला फेडरेशन है जो ऑफिशियली WHO के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद इस बात की कि इसके पीछे जो अवेयरनेस हमको जो पैदा करना है, तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो वर्ल्ड हार्ट डे हम लोग करें। तो ये वर्ल्ड हार्ट डे जब तय हुआ तो उसमें ये देखा गया कि ये 29 सितंबर 1978 में सबसे पहले फेडरेशन की शुरुआत हुई थी। इसलिए 29 सितंबर को लिया गया कि 29 सितंबर के दिन ही हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे करेंगे। तो अब ये तो हमने वो कर लिया लोगों ने, तो कहा कि इसके पीछे आखिर हम कैसे फर्दर हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। स्ट्रेटजी में होगा कि वजह क्या है, क्या बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक चीज देखे होगे, ये योग तुम्हारे देश की उपज है। पतंजलि तुम्हारे यहाँ के ऋषि थे, सबसे पहले योगिक क्रियाएं वो किए, लेकिन हिंदुस्तान के लोग उसको जो है बहुत तवज्जो नहीं दिए। जब यही योग योगा बन करके अमेरिका से सर्टिफिकेट लेकर के वापस इंडिया में आया, तो आज जो है ना रोड पर भी आदमी करते रहता है, रोज चलते रहेगा, ऐसे से करते रहेगा। देखिए ये इतना हुआ कब,
जबकि अमेरिका से सर्टिफिकेट लेके ये आ गया। तो सवाल यह है कि हार्ट के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए कहना पड़ा कि हेल्थ से संबंधित कोई भी स्ट्रेटजी अगर जो आप बनाते हैं तो उसमें हार्ट को केंद्र में रख करके बनाइए। ये कहने का मतलब क्या है? लोग कहेंगे कि हार्ट तो बॉडी का पार्ट है, वो अगर जो हेल्थ नहीं सही रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा, बात सही है, लेकिन कम से कम 60% से ऊपर लोग हैं जिनका कि हार्ट एकदम टू द लेवल एकदम सही नहीं है, इसके बावजूद भी वो जिंदा है ना। वैसे लोग कम से कम इस तरह की बात दिमाग में रखें कि उनका हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे, ताकि उनका स्टेटस जो है उनके हेल्थ का टू द लेवल मेंटेन एंड बैलेंस्ड। इसलिए ये बात कहने की जरूरत है। आज को कहने के लिए खास करके एक जो है वर्ल्ड हार्ट डे का ये किया गया डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसमें ये कहा गया, क्योंकि ये सवाल यह है कि ये हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक बात देखी गई है, बहुत छोटा सा बदलाव भी अपने लाइफ स्टाइल में किया जाए तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। थोड़ा सा पीछे बहुत वो बड़ा, जैसे कि तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो और तुम्हारे टेबल में सामने में एक पट्टी लगी रहती है ना टेबल के नीचे, वहां पे बैठ करके और कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ उसके ऊपर अपने पैर को जो है ना वो समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे ऐसे क्या उसमें होगा कि तुम तो खाली बैठे हुए थे, उस दरमियान ये जो होगा तो ये होने से कम इतने दूर के नीचे का जो एक्टिविटी है अनड्यू सामने आएगी, और वो एक्टिविटी सामने आएगी तो ये होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे जो ट्राइसेप्स सूरी Yes, sir. है ना, Yes, sir. it includes the gastrocnemius, soleus and plantaris. Plantaris. Yes, sir. और इसी को हम लोग ये जानते हैं कि द काफ, जनरल टर्म में ये काफ मसल जो है ये इट इज रिगार्डेड एज सेकंड हार्ट। Yes, sir. वजह क्या है कि बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स और बहुत ज्यादा ब्लड वो वहाँ जमा करने की कैपेसिटी उसके अंदर में होल लोअर लिम्ब की Yes, sir. उसकी जो है उसके ऊपर जो ये एक्टिविटी जो होगा वो हार्ट के ऊपर एक बहुत ही उतना हल्का काम बैठे बैठे कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। ये भी जस्ट एग्जाम्पल, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आएंगी जो कि थोड़ा सा अगर जो बदलाव कर दें तो परिणाम वो होगा कि हार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। अब ये देखें कि हार्ट की जो इतनी समस्या जो हो गई कि मैंने ये जो अभी कहा कि वो जितना भी कार्डियक जो सेंटर है वो सब जनरल हॉस्पिटल की तरह दिख रहा है। जिस जनरल हॉस्पिटल में जमीन पे बेड लगाने की जरूरत पड़ रही है, कार्डियक हॉस्पिटल में रोगी आ रहा है तो वैसी उसी तरह की स्थिति दिख रही है। इतने ज्यादा संख्या में लोग हैं, तो इसके कारण को अगर जो देखें तो सबसे हम लोग बराबर ये चीज देखते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं कि लाइफ स्टाइल एंड डाइट स्टाइल की गड़बड़ियां ये अक्सर बहुत सारे हेल्थ हजार्ड को पैदा करती हैं। और ये लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल की जो गड़बड़ी है ये वो शौक से नहीं होता है, मजबूरी तुम्हारी होती है। लेकिन शायद कितनी भी मजबूरी हो, कितना हो जल्दी खाना खाना हो,
तो सिर्फ मुंह से ना खाएंगे, नाक से नहीं ना खाएंगे। वो नाक से खाना खाने के प्रयास करने वाले लोगों के साथ हेल्थ यार्ड ऐसा हो जाता है। अब सुबह अलार्म लगाए कि हमको 5 बजे उठना है, अलार्म बजा भी, लेकिन 10 मिनट वो जो है बटिया गए उठते उठते हैं, वही 10 मिनट में अब दौड़ा दौड़ी उनको शुरू हो गया। अब दौड़ा दौड़ी शुरू हो गया। वहाँ पर वो बाहर से एक पार्टी आई हुई है, आकर के उसको 7 बजे मिल जाना है। यहाँ है ड्राइवर नीचे खड़ा होकर के हॉर्न बजा रहा है, वो इधर जो है वो ब्रश लेके जाता है बाथरूम में, और क्या क्या करके कितना जल्दी में निकल के आता है भगवान जाने। वो बेटी जो है जो स्लाइस ब्रेड में तो टोस्ट में मक्खन लगा करके मुंह में डाल रही है, तो इधर मोजा पहन रहा है, उधर ड्राइवर पे कर रहा है, आ रहे गाड़ी में जाके बैठ रहा है और धक 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 कर रहा है कि भर के चल जाएगा, 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। इस तरह की स्थिति में दिन भर वो आदमी चलता है। इतना जब दिन भर चलेगा तो निश्चित है कि 50 लाख का रोज कमाया, तो रात में खाना भी तो यही खाएगा, मुर्गे मुसल्लम, चिकन बिरयानी, वो विदेशी शराब। ये कुल मिलाकर उसका लाइफ स्टाइल क्या हो गया? द वर्स्ट। और ये वर्स्ट लाइफ स्टाइल का सबसे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे हार्ट के ऊपर। ये सुबह उठे हैं, ये काम लगा हुआ है, नहीं जल्दी जाएंगे, बगैर खाए पिए चल दिए, वहां से लौटते लौटते 1 बज गया। लौट रहे सोचते कि अच्छा अब तो घर जाएंगे, खाना खाएंगे। रास्ते में होटल के बगल गंध एक निकली सब्जी की या कोई चीज की नाक में लगी, उसका क्या परिणाम होगा? सलाइवा का सिक्रीशन होगा। यस सर। और सलाइवा को तुम घोंटोगे, खाली सलाइवा जब घोंटाया तो स्टोमक को तो नहीं मालूम है कि क्या आ रहा है, उसको तो मालूम है कि कुछ फूड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली सफिशिएंट वहाँ जो है वो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन निकल गया, उसी के अकॉर्डिंगली HCl निकल गया। भोजन रहता तो एडजस्ट हो जाता, भोजन तो था नहीं। अब क्या होगा? उसका इफेक्ट दीवार पर पड़ेगा, क्योंकि स्टोमक की जो दीवार है बॉडी का जब तो होता है तो प्रोटीन का बना हुआ है, और उसके अंदर जो है पेप्सिन, पैरापेप्सिन, कैसेप्सिन, जितने भी जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो निकले, जब उनको नहीं मिलेगा ये फूड सब्सटेंस, तो किसको डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्ट करेगा इंटरनल लाइनिंग को। डाइजेस्ट हो गया तो वहाँ अल्सरेशन हो गया। कहने का मतलब कि ये जो है इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल, इन सबों के कारण कि जो है पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक हो रही है। अब आगे अगर देखो, नौजवानों के साथ एक ग्रुप है जो झेल रहा है बेरोजगारी, रात दिन परेशान है, कितने चप्पल टूट गए, सुबह से उठता है, सारा पेपर छान लेता है, कहीं कोई वैकेंसी है क्या है वो खोज के निकालता है, दौड़े दौड़े वहां पहुंचता है, दे के आता है, बाद में मालूम होता है कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ये लगातार उसके ऊपर ये निराशा का जो ये पड़ रहा है, ये झटका, मानसिक रूप से वो बच्चा ये जो विकृत है, ये मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान जो हो रहा है, उसका सीधा सीधा उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये सोचते सोचते क्या कि अरे कल के दिन अगर जो पिताजी रिटायर करने वाले हैं वो कर जाएंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा नहीं सोच पाता है। क्या सब जो है उसको धक से यहां धक्का मारता है, इसको महसूस करते होंगे, क्योंकि उसके पास उसका समाधान नहीं है, उसका हक। और दूसरे, जिस लड़के को नौकरी लग गई, अब वो 8 घंटा 10 घंटा कंप्यूटर पे बैठ रहा है, बैठना उसकी मजबूरी है, कंपनी 10 घंटा से कम में छोड़ती ही नहीं है। काम ही ऐसा है कि रात दिन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे बैठना है तो लगातार 2 बातें, एक तो कि लगातार बैठना, और दूसरी बात कि लगातार रेडिएशन का एक्सपोजर में रहना। ये दोनों मिलकर उसके हेल्थ को बहुत ही बुरा करते हैं।
लेकिन अब उसकी मजबूरी है कि उसको फेस करना है। यानी नौकरी नहीं मिली तो एक तरह का प्रॉब्लम, नौकरी मिल गई तो दूसरी तरह का प्रॉब्लम, और ये सारा कुछ जो है ना। अच्छा, दूसरी बात, ऑफिस चले गए सवेरे, जल्दी जल्दी दौड़ के, घर में खाना नहीं बन पाया था। वहाँ गए तो ऑफिस के कैंटीन में, एक काम करो भाई, कोई फास्ट फूड है मंगा लो, जंक फूड है मंगा लो, कोई प्रोसेस्ड फूड है, अरे वही पैकेट लाना है, यहीं पर बैठते बैठते खाएंगे, यहीं पर कुछ काम है कर लेंगे। वो फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते खाते उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अभी जो लड़की कही कि ब्लड वेसल के अंदर में फैट जमा हो जाएगा और वो जो है बंद हो जाएगा, उसके पीछे ये कोलेस्ट्रॉल का जमा होना एक बहुत बड़ा कारण इस तरह का है। अभी यही तो भाग गया, तो मैंने हम तो सोचे थे कि बहुत कुछ तुम लोगों को दिखा, हालांकि जो लोग नहीं इसको देखे हैं उन लोगों को तो दिखाना बाकी है। जो लोग देखे हैं वो इस चीज को याद कर ले सकते हैं। हमने ये बताया था कि आज का ये जो डाइट स्टाइल है, इसके अंदर में ये जितने भी ऐसे जो फूड हैं, समोसा, नहीं जानता है ना कितना समोसा वाला आज तक मेरे ऊपर केस कर दिया होता है, कितना बार वो लोग सुना है कि हमारा बेइज्जती कराता है ये समोसा का। समोसा की दुकान में जाके जानना है कि कितना पुराना तेल में समोसा खिला रहा है, ये मत पूछो कि कितने पुराने तेल में छान रहे हो। उसने कहा सर अभी ना 10 किलो डाले हैं, और वास्तव में अभी ये उड़ाला है, 10 किलो तो रोज बिकिया जाता है, लेकिन वो जो 150 ग्राम बचा रहता है लास्ट में, उसको क्या वो फेंक देता है? नहीं, उसको पूछो कि तुमने दुकान कब खोली है। अगर वो कहता है कि 30 वर्ष हो गया तो समझ लो कि 30 वर्ष का पुराना कोई तेल का पार्ट जो है वो इसमें आज भी मौजूद है, और वो गर्म होते बार बार गर्म होते होते स्थिति हो रही है कि जो पहले वो HDL था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अभी वो LDL हो गया है, लो डेंसिटी। और लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन जो हो गया है, ये तुम्हारे शरीर के लिए एंटीजेनिक उसका कैरेक्टर है, तुम्हारे अंदर में एंटीजन के रूप में काम करता है। ये एंटीजन जब जाएगा ब्लड वेसल में, तो उसके ब्लड वेसल के अंदर पहुंचते ही स्थिति ये हो जाएगी, वहाँ हम जानते हैं कि पूरे बॉडी में ये जो एरियोलर टिश्यू जो है, वो थ्रू आउट द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए पैकिंग मटेरियल। जहाँ कहीं भी खाली जगह वो एरियोलर टिश्यू डिपोजिटेड है, उस एरियोलर टिश्यू का जो मेन जो उसके जो 6 जो उसके अंदर में सेल्स उसके कंपोजिशन में है, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा सेल, पिगमेंट सेल, बेसोफिल एंड मास्ट सेल। इनमें हिस्टोसाइट जो है ये मैक्रोफेज है। जैसे ही वहां वो जाएगा उसको मिल जाएगा इंस्पायरेशन, जनरली वो तो यहाँ से सिग्नल उसको मिलेगा ये आ गया है इसके अंदर में, वो आकर के उसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करेगा तो वो तो चूंकि जहरीला पदार्थ है तो उसको तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, खुद बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ के जाकर दीवार पे सट जाएगा कहीं पे, जैसे कि बीमार आदमी कहीं सिर तक खुद कर सट जाता है। 1, 2, 3, 4 जितने भी वो जाकर के सटेंगे, ये सभी जो मैक्रोफेज जो हैं वो के लेकर के जो बीमार पड़ गए, ये सभी फोम सेल कहलाते हैं। ये फोम सेल सब जमा होकर के जब मोटा हो गया दीवार, तो क्या हो गया वहां पे, पैची थिकनेस ऑफ द ब्लड वेसल, एंड दैट पैची थिकनेस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जब हो गया तो अब समझने में देर नहीं लगेगी कि वही टूट के निकलेगा और थ्रोम्बोस के रूप में वो कहीं जाएगा, जहां जाकर फंसेगा वहां पर ब्लड वेसल को रोकेगा। तो ये जो है डाइट का ये जो स्थिति है, ये समझ लो। इसके बाद कुछ बातों को फाइनल ईयर के या जो इंटर्नशिप के लड़के हैं कई एक बार डिस्कस किए हैं
कि अबाउट 60% जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में इटियोलॉजी लिखा रहता है अननोन। यस सर। इटियोलॉजी अननोन। ये बात भी कही जाती है कि मेडिकल वर्ल्ड जो है अभी तक टोटल डिजीज कंडीशन ऑन द होल का सिर्फ 10% जानता है, और उसी 10% के बल पे पूरे वर्ल्ड के ये हेल्थ का जो सेटअप है उसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सोच लो कि पूरा वर्ल्ड अगर 10% जानता है, ये डॉक्टर ए.के. सिंह की क्षमता उसमें कहाँ होगी? 0.0000000 अब तो इन्फाइनिटी पर न रहेंगे हम परसेंटेज मेरा, लेकिन फिर भी तुम लोग कहते हो हमारे ए.के. से क्या बात है। तो जहाँ पेड़ नहीं वहाँ रेड़ प्रधान। तो और दूसरी स्थिति क्या होती है, वो कहलाता है याट्रोजेनिक डिजीजेज, है ना? याट्रोजेनिक डिजीजेज मतलब द डिजीजेज अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एनी इनडिस्क्रिपेंसी इन द थेराप्यूटिक प्रोसीड्यूर। यस सर। डॉक्टर की गलती से कहीं किसी का कोई नर्व कट गया, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर रहा था, फुडेंडल नर्व कट गया, पैर ऐसे करके चल रहा है, क्या हुआ जी? अरे नसीब है यार, क्या करें। That is याट्रोजेनिक। तो इस तरह के जो थेराप्यूटिक वो प्रॉब्लम के चलते थेराप्यूटिक प्रोसीड्यूर के तहत जो हो जाता है, जैसे आज एक तो ये ट्रेडिशन भी हो गया, हालांकि कुछ तो जरूरत भी है, लेकिन जरूरत कम है, वो उसको यूं कहो स्टेटस सिंबल ज्यादा है। अरे आपकी बहुत प्रेग्नेंट है, अभी तक आप उसका स्कैनिंग नहीं करवाए हैं, अभी तक उसका एमआरआई नहीं करवाए हैं, लोग लगेगा कि कोई गाली दे दिया, दौड़ के आएगा, घर से ले जाएगा, कहे चल भैया पहले तो स्कैनिंग करा देते हैं, और डॉक्टर कहेगा कल के दिन हम नहीं जानते हैं, कुछ होगा तो अरे ये कीजिए, इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, ये सब करा के आइए। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ पे बच्चे के ऊपर एक्सरे का एक्सपोजर अगर फ्रीक्वेंट हुआ, इन्वेसिव कंडीशंस जितने भी हैं, फिर वो किताब का जिक्र करेंगे, उसमें मैंने 2 ग्रुप में बांटा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि ईसीजी, एक्सरे ये सब सिंपल है, और ये जो इको और वो एमआरआई ये सब जिसके अंदर में डाई दे करके और कॉन्ट्रास्ट करके किया जाता है, सब कॉम्प्लेक्स है। तो जहाँ डाई दे करके और कॉन्ट्रास्ट करके देखा जाता है, वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन का इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और उसका हार्ट के ऊपर मोस्टली उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस रूप में उसके कारण ये हो गया। अब और आगे अगर जो देखो, हालांकि आज तो इतना लोग डरा है कि धूम्रपान बहुत कम हो गया है अपने हिंदुस्तान में, कम से कम, और नहीं तो धूम्रपान भी बहुत जोरदार ढंग से शुरू हुआ था। जहां देखो ये जाड़ा का टाइम में तो अगर जो गाड़ी में बैठ जाओ तो बोगी लगता था कि पूरे बोगी में आग लग गया है। 70 आदमी अगर 72 आदमी बैठा हुआ है तो 72 में से 60 आदमी सिगरेट पी रहा है। आज खैर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव जो है ऐसा होता है। हार्ट के ऊपर शराब और सिगरेट, सिगरेट मीन्स धूम्रपान किसी रूप में, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है नशा के तरफ से। और अगर हम ये देखते हैं, ये सारी बात होकर के पूरे वर्ल्ड के लेवल में क्या स्तर अभी है हर डिजीज का, स्टैटिस्टिकल डाटा उसको अगर जो हम देखें तो स्टैटिस्टिकल डाटा में ये चीज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, taking an estimated 17.9 million lives each year। पहले हम बताया 17 से 20 मिलियन, तो उसके अंदर में अच्छा among them
diseases concerned with coronary artery. It is leading and it accounts about 1/3 of the total heart disease. टोटल हार्ट डिजीज का 1/3 जो है ये कॉर्नरी मैंने जो ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है, कहने का मतलब वो है। पूरे वर्ल्ड में अगर जो देखो हार्ट डिजीज का हायर अगर रेट देखो तो रशियन में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज होता है। रशियन फेडरेशन ने सबसे अधिक, उसके बाद इंडोनेशिया, अरे उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद इंडोनेशिया। इनको लोगों ने एस्टिमेट किया है कि 433 प्रत्येक 1 लाख में रशियन, 389 प्रत्येक 1 लाख में ये यूरोपियन और 383 प्रत्येक 1 लाख में इंडोनेशिया। ये जो है स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये अभी तक इसके बाद का नया डाटा कोई पब्लिश नहीं हुआ है। ये 20 से 23 के बीच का डाटा है, 20 के बाद और 22 के बीच में। अब ये देखें, ये तो हाईएस्ट हो गया रशियन, यूरोपियन एंड इंडोनेशियन। लोवेस्ट सबसे कम हार्ट डिजीज, तो सबसे कम हार्ट डिजीज पूरे वर्ल्ड में जापान। जापान में सबसे कम हार्ट डिजीज होता है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद कोरिया। जापान में प्रत्येक 1 लाख व्यक्ति में 1 लाख में 77 रोगी जो होता है वो हार्ट का होता है। फ्रांस में 91 रोगी होता है और ये कोरिया में 95 होता है, यानी सबसे कम जापानीज। ये जापानीज लोग जो पूरे वर्ल्ड में ये जो एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि सबसे कम हार्ट डिजीज उनके यहाँ होता है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह इसके पीछे 3। नंबर 1 कि शुरू से ही वहाँ शराब का प्रचलन जो है वो सिर्फ नॉमिनल है, सिगरेट का प्रचलन है ही नहीं। और बौद्ध धर्म के आ जाने के बाद नॉन वेज का प्रचलन वहाँ खत्म हो गया, नहीं हुआ। और ये तीनों चीज जो है हार्ट डिजीज को कराने वाला है। इसलिए यही वजह है कि पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान कायम किए हुए है जापान, कि उसके यहाँ सबसे कम हार्ट डिजीज। अब ये देखें, हाँ वह और एक चीज है, बॉडी मास इंडेक्स BMI। देखे होगे जापानीज जो भी आदमी मिलेगा एकदम बैलेंस्ड मिलेगा। एको को जापानीज को वो कोरिया वाला जो था वो कौन सू या हो ऐसे करके सुअर के तरफ, ऐसा एक भी जापानीज नहीं मिलेगा। एकदम बॉडी मास इंडेक्स एकदम मेंटेन। और ये भी बहुत बड़ी बात है, शरीर में फैट का जो माने एडजस्टेड रहना ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद ये अगर जो देखें कि कुल मिलाकर के ये कार्डियोवास्कुलर रेट अपने इंडिया के अंदर में अगर जो देखते हैं तो इंडिया के अंदर में जनरली 1.6 to 7.4% जो है ये अर्बन इलाके में है, और वही 1 to 30.2 जो है ये यहाँ सॉरी वो रूरल इलाके में है, ये अर्बन इलाके में है। 1 to 30 शहरी इलाके में, शहरी इलाके में हार्ट रेट का परसेंटेज ये ज्यादा है। हाईएस्ट सीवीडी रेट जो है अपने हिंदुस्तान में अगर जो देखें तो केरल में सबसे ज्यादा है, पंजाब उसके बाद, तमिलनाडु उससे के बाद, और लोअर में अगर जो देखें तो राजस्थान, यूपी, और हम लोग शान से कह सकते हैं कि सबसे लोअर बिहार। यानी वर्ल्ड में जो स्थान जापान का है, हिंदुस्तान में वो स्थान बिहार का है।
मिला के अगर जो देखें तो भारतवर्ष में 12 लाख मौत हार्ट के कारण प्रत्येक साल होता है। उधर मिलियन में था कि 1 मिलियन, यहाँ 12 लाख मतलब 1.2 मिलियन। ये इतना मौत जो है यहाँ है। इसके पीछे अगर जो ये देखते हैं कि जिन कारणों से ये जो संख्या लगातार बढ़ रही है, उनमें मोटापा, डायबिटीज, ये अनियमित जीवन शैली को तो इतना बार बोल चुके कि तो हमसे लड़ाई करेगा आप, ज्यादा समय तक कंप्यूटर पर बैठना, गर्भवती महिलाओं का बार बार एक्सरे, सीटी स्कैन ये होना, या फिर व्यसन, मुख्यतः धूम्रपान, शराब या अन्य नशा। इन सबों के अलावा कुछ केमिकल कंडीशंस जैसे क्लिनिकल कंडीशन में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। लोग कहते हैं कि हाइपरटेंशन इज ए कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ा क्लियर कर दें हम कि इट हैव रेसिप्रोकल रिलेशन, क्योंकि हाइपरटेंशन इन इटसेल्फ इज ए हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन तो खुद हार्ट डिजीज है। हार्ट की गड़बड़ी के कारण हाइपरटेंशन होता है और हाइपरटेंशन के कारण हार्ट की गड़बड़ी होती है, यानी दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में एडवांसिंग एज, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जो देखे हो कितना लोगों को खर्राटा आना। खर्राटे का 2 लेवल पे बहुत असर होता है, एक ब्रेन के ऊपर भी और दूसरा हार्ट के ऊपर भी। ये जो होता है ना, इसका वो ऐसा इफेक्ट हार्ट के ऊपर पड़ता है और बार बार दबने वाला इफेक्ट। क्योंकि ये तालू जो है, खर्राटा क्यों आ रहा है, ये तालू जो है, तालू डिप्रेस हो गया, चाहे तो पैरालाइज हो गया, चाहे फिजियोलॉजिकली हो गया, जैसा भी हो गया, तालू डिप्रेस हो गया तो जो इसके बीच से जो नली जा रही है वो माने एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो उसी में दबाव पड़ता था, खड़ वही करता है। ये जो कर रहा है, समझ लो कि ऐसे करके देखो तो ऊपर जो है वो उस तरह से हिलेगा। उसका परिणाम हार्ट के ऊपर भी होता है, ऊपर ब्रेन के ऊपर भी होता है। हार्ट के ऊपर ये स्लीप एपनिया करते हैं उस कंडीशन में। हालांकि एक आध दिन इस खर्राटा के ऊपर भी एक आध सेमिनार करेंगे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि इसको लोग जो है बहुत कम महत्व देते हैं। खाली खर्राटा जानते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तुम लोगों को निश्चित याद होगा, वो हम कभी वो ग्राफ दिखाए थे इसी प्रकार कि पोटेशियम का जो डेफिशिएंसी है, माने हाइपोकैलेमिया, वो हाइपोकैलेमिया में ये जो एसटी सेगमेंट काफी लंबा हो जाता है और उसके बाद टी वेव बनता है। यस सर। तो ये कंडीशन जो है हार्ट को ये हानिकारक है, इसके कारण हार्ट डिजीज हो सकते हैं। मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी से हो सकता है। विटामिन डी, आज के डॉक्टर लोग जो है ना, तो ज्यादा पेशेंट को डरवाता है, जाओ विटामिन D3 का जांच करवा लो। वो जानता है कि 30 वर्ष के ऊपर आदमी को विटामिन D3 कम रहेगा ही। यस सर। अरे विटामिन D3 इतना कम है, ये हार्ट को ये तो बर्बाद कर देगा। क्या करे सर? ठीक है, और अगला लिस्ट ले लो। लेकिन ये एकदम हवा में नहीं है। विटामिन डी के डिफिशियंसी जो है ये हार्ट के ऊपर, विटामिन डी की डिफिशियंसी एक्चुअली हार्ट के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, भूख नहीं लगा तुम लोगों को। देखो हमारा अनवरत वो गंगा जी के किनारे रहने वाला हम है, गंगे जी वाला कैरेक्टर है, वो बहती चलेगी, धारा बहती चलेगी। जब लगे कि हाँ बोर हो गए तब कह देना इस तरह हम अगले एपिसोड में। हाँ, तो
ये जो है विटामिन डी की क्या हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब रहती है परिणाम उसका होता है एडवांस एज की बात हम किए। एक्चुअली एडवांस एज में हम जानते हैं ना, अगर दूध दो पीने के लिए मेरे जैसे बुजुर्ग को तो लोग कह रहे हमको कायल दे रहे बच्चा लोग को खिलाओ नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये नहीं है कि बच्चे के प्रति मेरा मोह बोल रहा है, इसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि हमको तो ये फायदा करेगा ही नहीं, ये कैल्शियम तो हमारा एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, एज एडवांस हो गया है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो गई है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम जो है ये बॉडी के अंदर में कैल्शियम और फास्फोरस ये दो सब्सटेंस जो है, एक बार कोई आए थे बाहर से अपने यहाँ और लड़कों को पूछ दिए थे कि कैल्शियम जो है बॉडी में कहाँ पाया जाता है, और लड़के ढंग का जवाब नहीं दे पाए थे। उनके जाने के बाद सब लड़का को 1 घंटा नील डाउन करा करके हम क्लास में छोड़ दिए। ऐसा रहो तुम लोग को पहले ही बता देते हैं ताकि तुम लोग को नील डाउन में होना पड़े। एक्चुअली कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों जो हैं बॉडी के अंदर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ये यूनिट है। कोई भी आयोनिक फॉर्म में जो सब्सटेंस बॉडी में कहीं से आएगा कहीं से जाएगा, सेल के अंदर सेल के बाहर, ये नहीं कि सीधे जो है वो आ रहा है जा रहा है। सेल के अंदर से किसी अगर जो पोटेशियम को बाहर निकलना है तो वो कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, तब कहीं जाकर के उस पोर से बाहर निकलेगा। और वैसे ही तुम देखते हो बहुत सारी चीजें, मान लो मोस्ट कॉमन चीज, तुम खाना खाए, ग्लूकोज का डाइजेशन हो गया, जेजुनम में वो पहुंच गया, वहां से उसको एब्जॉर्ब होना है, कैसे होगा? जेजुनम में जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन आया तो फॉस्फोरिक एसिड वहां पहुंचेगा, और फॉस्फोरिक एसिड टूट करके फॉस्फेट PO4 बनेगा। वो PO4 जो है उसके साथ 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जुड़ेंगे हेक्सोस फॉर्म में, और तब वो दीवार को पार करेंगे, और पार करके वो मेसेंट्रिक वेन में जाएंगे, उससे वो पोर्टल सिस्टम में गए, तब वो लीवर में गए। तो ये फॉस्फोरस का, तो इस तरह से ये क्रिया कहलाती है फॉस्फोरिलेशन, और जो वहां जाकर टूट करके फॉस्फेट वापस आ गया, ये है डीफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो है ये तो कैल्शियम मान लो कि होल बॉडी में न है, तुम्हारा प्रत्येक सेल में ये क्रिया हो रही है, इसलिए जवाब इसका है कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो खैर एडवांसिंग एज, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, और कुछ केमिकल जो दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, खाली हम लोग तो नहीं करते हैं, दवा के रूप में केमिकल इस्तेमाल का मतलब ये सीधे है कन्वेंशनल मेडिसिन। एलोपैथी मत कर देना उसको, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लड़ाई कर देंगे, ताकि एलोपैथी एक तरह से गाली है, जो नहीं जानते हैं वो नहीं करें, जो जानते हैं लड़ाई भी कर देंगे। जानते हो कैसे गाली है? हैंडमैन ने ये शब्द की रचना की है, और वो गाली के सेंस में रचना की है कि दोज आर एलोपैथ हु आर डूइंग आउट ऑफ, है ना? तो एलोपैथी कहीं इस मैंने स्टेज से नहीं बोलना। कन्वेंशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन सबसे बेहतर मुलम्मा है लिफाफे के अंदर में बोलने का। अब एक चीज देखो कि दिल को सामान्य स्वस्थ व्यक्ति या किसी अवस्था में उसको सामान्य रखने के लिए हमको सामान्यतः क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात नमक। हालांकि ये चीज जो है हाइपरटेंशन, तुम लोग जब पढ़े होगे तो उसमें ये पाए होगे कि हाइपरटेंशन के जो 2 क्लासिफिकेशंस हैं, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई कारण नहीं मालूम है, लेकिन उसके बारे में ये हाइपोथेसिस है कि
it has been observed that all those countries who indulge in salt very gravely, they frequently develop hypertension. ये बात उसमें तुमको मिलेगी। यानी जिस कंट्री के लोग ज़्यादा ये नमक का इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ देखा जाता है कि मोहम्मदन फैमिली में जो वेल टू डू फैमिली है उसमें हाइपरटेंशन, और जो रन डाउन फैमिली है उसमें ट्यूबरकुलोसिस, या मोस्टली उसके लिए समझ लो कि एक पैटर्न है। तो हाइपरटेंशन क्यों है? उनके यहाँ जो डाइट जो होता है उसमें नमकीन के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्हारे यहाँ मीनू है, रविवार को खीर खाएंगे, शनिवार को खिचड़ी खाएंगे, उस दिन भुंजा खाएंगे, उस दिन चूड़ा खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे। ये जो अलग बदलता जो मेनू होता है, इससे पेट को एक डिफरेंस चेंज मिलता रहता है। और वहाँ है कि कुछ नहीं, मुर्गे मसालम खाएंगे तो नमक खाएंगे, चिकन बिरयानी खाएंगे तो नमक खाएंगे, वो अगर जो अंडा खाते हैं तो नमक खाते हैं, अगर बीफ खाते हैं तो नमक, एवरीवेयर नमक। और वहाँ के अक्सर जो है जो धनाढ़ लोग हैं उनको हाइपरटेंशन, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है नमक। तो नमक के बारे में कहा जाता है कि नमक 6 ग्राम, यानी छोटे चाय चम्मच से जस्ट सवाई, ये 24। हाँ, इस 6 ग्राम में भी बहुत सारे तुम्हारे जो फूड आर्टिकल हैं उनमें नेचुरल नमक हैं, उनको माइनस कर दो। यानी चाय चमची जो है ना उसको हल्के से उठा करके 1 चम्मच निकालो और दिन भर के लिए नमक उसको बना हाँ, 30 मिनट का व्यायाम डेली। और व्यायाम कैसा? और कुछ नहीं, तो ब्रिस्क वॉकिंग, लपकने के अंदाज में, जैसे कि लगे कि ट्रेन छूटने वाली है तो हम कैसे चलते हैं उस अंदाज में चलना, साइकिल चलाना, वो क्या नाम तैरना, ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, ये आधा घंटा का एक्सरसाइज कम से कम अगर डेली होता है, वसा उत्पादों में कुल कैलोरी का 20 से 35 से ज्यादा न हो। सामान्य रूप से सब 9 बजे तक सोता है, सब 9 बजे तक सोता है। हाँ, डाइट हम तो कहे 9 बजे सोने वाले टेबल पर बैठ के भी करे ना, हम तो उपाय सबका बता रहे हैं। जैसे हमारा जो डाइट जो है एवरेज है कि जो लोग सामान्य ऑफिस वर्क करने वाले हैं, यानी जिनका कि लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, उनका 2000 कैलोरी पर डे उनका डाइट उसी के आसपास होना चाहिए। अगर थोड़ा उनका फील्ड वर्क अगर है तो 2500, अगर मैनुअल वर्क है जैसे लोहार है या कुछ इस टाइप का 3000। ये कैलोरी का ये एस्टिमेशन है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सब तुम्हारे कम्युनिटी मेडिसिन की बात है, इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि हम कम्युनिटी मेडिसिन के पक्ष से बोलेंगे आज। तो उसके अंदर में 20 से 35% सिर्फ फैट से तुमको मिलना चाहिए। 1 ग्राम जो है उसमें 4 कैलोरी मिलता है ना, तो इसी हिसाब से देख लो कि 20 से 35% ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। उसमें भी सेचुरेटेड फैट, समझते हो क्या है सेचुरेटेड फैट? जो फैट ठंडे में जम जाए और गर्म करने पर पिघल जाए, ये सेचुरेटेड फैट है। जैसे कि वनस्पति, जैसे घी। लेकिन यही तेल चाहे कितना हो, ठंड पड़े माइनस में काहे नहीं पड़े, नहीं जमेगा। बल्कि तेल में पहचान है कुछ मिलावट को। पाम ऑयल जो होता है ना, अक्सर लोग सरसों के तेल में मिलाते हैं। सीधी पहचान है कि उसको इतना थोड़ा सा तेल जो है कटोरी में लेकर के और डीप फ्रिज में रख दो, 5 मिनट रख दो, पाम ऑयल जम जाएगा। अगर जम गया तो समझ लो कि इसमें पाम ऑयल मिला। नारियल ऑयल
नहीं। हाँ दक्षिण भारत में वही खाता है वो तो ठीक है। वो 10% सेचुरेटेड फैट से 10% एनर्जी प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा जैसा है मेवा है, बीज है, अलसी है, मछली है, ये सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जो पशु जनित वसा जो है, जैसे रेड मीट है, बटर है, रिफाइंड है प्रोडक्ट, ये सब जो है अब लोगों का दिल खुश करने के लिए तो पेशेंट के भागो इसके यहाँ से, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे अपना जेल लिखवा देता है कि होम्योपैथिक इलाज के वक्त नून, तेल, हींग, मसाला, ये वो सब बंद, तो रोगी कहता भैया भागो, ये तो सब तो मार देगा खाने पीना। तो वो ऐसा नहीं करो, उसको कहो कि कम खाओ, तो कहेगा चलो अलाउ करो कम खाओ। उसके बाद लेकिन तंबाकू एंड नशीले पदार्थ उसको स्ट्रिक्टली मना करो। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं। आज जो ये लोग कहा कि मद्य निषेध के लिए घर घर जाकर के कराएंगे, वो मैंने सबका वो भी घर सुमारी, एक आदमी कहा कि बताओ जो दारू पिए हुए है उस वक्त भी पूछोगे कि दारू पीना सही है कि गलत है, तो क्या कहेगा? गलत कहेगा कि सही है, गलत है। तो तुम क्या करोगे घर तुम्हारी? तो वैसे ही तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थ को एकदम स्ट्रिक्टली मना करो। मौसमी फल और सब्जियां जो हैं ये वैशाखता पहले को जितना चाहे तुम खाओ, ये सबसे बेहतर है। उसके बाद जनरल कुछ फिगर जो हैं, ब्लड शुगर का लेवल तुम्हारे बॉडी में चाहे उससे संबंधित कुछ रोग है कि नहीं, 100 मिलीग्राम के अंदर रहना चाहिए, वहां पर मेंटेन रखो। ब्लड प्रेशर को 120 से 180 के बीच में मेंटेन रखो। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 mg/dl से नीचे रखो। यस सर। टोटल HDL जो है वो 40 mg से ऊपर रहे, उससे कम नहीं रहे। टोटल LDL जो है वो 100 से ऊपर ना रहे। बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 to 25 के बीच में रहे। अगर ये रहता है तो तुम्हारे बॉडी का ये आइडियल पैरामीटर है, तुम्हारे हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखते हैं कि इन सबों के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है कि हमारे हार्ट को कोई डिजीज है। कैसे हम समझेंगे कि मेरा हार्ट कमजोर हुआ जा रहा है? इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं कि पहली बात लगातार थकान। लगातार थकान का सेंस क्या है कि बैठे बैठे भी उठ रहे हैं तो जो एक एनर्जेटिक वे में खड़ा होता है आदमी, वो ऐसा नहीं है, वो इस रूप में, यानी थकान का एहसास प्रत्येक एक्टिविटी पे आपको अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट में कहीं कमजोरी है। मैंने कई बार इस बात का उदाहरण दिया है, छोटे बच्चों के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अगर रहे तो बच्चा लोग दौड़ता है, शादी ब्याह तुम्हारे क्या होता है, पूरे परिवार के बच्चा है 15-20, 2-3 तल्ला तेरा मकान है, सुबह से उठ के 15-20 बच्चा जो है जो दौड़ना शुरू करे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 1 सेकंड रुकता है कोई? वो तब ही रुकता है जब सोता है। अगर उस दरमियान कोई एक लड़का बैठ जाए और बैठ के देखे उन लोगों को आते जाते और फिर कोशिश करे उठ के मिलने का, लेकिन फिर बैठ जाए तो समझ लो कि इसका हार्ट अंदर से कमजोरी को शो करा रहा है। सांस लेने में तकलीफ, इरेगुलर हार्ट बीट, ये तो देख कर समझ में आ जाएगा। पल्स इरेगुलर अगर हो रहा हो, पेन चेस्ट एंड एंजाइटी बिना बहुत स्पष्ट कारण के, हल्के से वजह से ही ये चेस्ट में पेन, थोड़ा सा ऐसे उठा के रखे 10 किलो, लेकिन खाली दुखना ही नहीं है, खाली दुख रहा है
इट मे बी ड्यू टू इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया, है ना। Yes, sir. अगर ये दुखा और साथ में कुछ बेचैनी की घबराहट के महसूस हुई तो समझ लो कि हार्ट। और जैसे इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न, ये जो हार्ट बर्न है, जो हालांकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये चीज, फिर वो जो अगर जो देखो किताब मेरी, उसमें इसकी चर्चा मैंने की है कि चेस्ट पेन में सेंट्रल चेस्ट पेन और पेरिफेरल चेस्ट पेन बांटा है। Yes, sir. उसके अंदर में अगर हार्ट के कारण चेस्ट पेन हो रहा है तो कैसा होगा, उसी के पीछे से इसोफेगस गुजरता है, उसमें अगर पेन होगा तो इट रिजेंबल्स लाइक द हार्ट पेन। लेकिन वो कैसा होगा, अगर इंटरकोस्टल मसल के न्यूरैल्जिया के कारण है तो वो कैसा होगा, इन सबों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन पेन अगर हो रहा है और साथ में एंजाइटी है तो निश्चित तौर पर संज्ञान की बात है। इसके बाद सूजन बिना किसी खास कारण के, खास करके डॉर्सन ऑफ द फुट पे अगर स्वेलिंग दिख रही है, न मान लो कि अब एंकल में अगर मोच आ गया तो स्वेलिंग होगा ही, वो नहीं, कोई कारण नहीं है, और सुबह उठ करके देख रहे हैं कि वहाँ पर, या शाम को देख रहे हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग है, तो ठीक है, सीधे जाकर के पहले जांच करवाओ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली द इंडिकेशन ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, Yes, sir. उसी में ये होता है। सडन एक्सेसिव परस्पायरेशन, समझे, तो एक बैड एक्सेसिव परस्पायरेशन ये 90% ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द कार्डियक। या फिर अब इसके मैनेजमेंट की बात अगर करें तो जनरल मैनेजमेंट, जैसे चेंज इन लाइफ एंड लाइफ स्टाइल, वो तम्बाकू, अल्कोहल, इन सबों को अवॉइड करो, वो बीपी, ईसीजी, इन सबों का पल्स, ऑक्सीमेट्री, एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सबों का एक रेगुलर वे पे जांच करते रहो। इसको आवश्यकता पड़े तो कार्डियोवर्सन, या पड़े तो कैथेटराइजेशन, या फिर उसमें जैसे ना वो अलग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। इस मेडिसिन की चर्चा अब नेक्स्ट डे करेंगे हम, जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पॉइंट से इसको डील करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देने का समय आ गया है। हम ये महसूस कर रहे हैं, लोग भले कह रहे हो लेकिन फिर भी महसूस कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग अनइजीनेस, तो आई मस्ट रियलाइज। एंड with these few words, I would like to put an end to my speech. Thank you.